Very good morning to all of you. Today we are going to start with electrolysis. Remember, beta, in your ninth standard, we did types of chemical reaction. So if I take an electrolyte, if I pass current in it, remember we have done water, acidified water we used to take, and it will dissociate. So I'm passing current. So electrolysis means splitting. So it will be splitting by passing what? Electric current. Is known as what? Electrolysis. Now for that, basically what all thing I need require. So let us do this. Dun, dun, dun. Okay. Electro means what? It's made up of two words. Electro means electric current. Lysis is what beta? Breaking, separation. So we are going to separate by passing electric current. Acha, the substance which allow electricity to pass through it, we call them as what? अच्छा बेटा ये वायर है, दिखाई दे रहा है ये वायर वायर के अंदर बेटा क्या होता है? कॉपर होता है बेटा. सो दैट इज अ कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर. ए इन मेटेलिक कंडक्टर करंट विल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इट विल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स. पहले यहाँ पे देख. ओके. होता नहीं, पहले यहाँ पे देख, ठीक है ना. सो दीज आर कॉल्ड व्हाट? कंडक्टर्स. दीज आर कॉल्ड व्हाट? ओके. ए ये कैन यू सी दिस? ये वायर के ऊपर ये कुछ दिख रहा है ब्लैक ब्लैक. दिस इज प्लास्टिक जैसा दिख रहा है ना. हाँ. सो दीज आर नॉन कंडक्टर. पीवीसी होता है, इसको क्या बोलते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड. ओके. दीज आर व्हाट? नॉन कंडक्टर्स. So will they allow electricity to pass through it? No. So all is rubber and all these are non-conductor. Okay. So now let us go to the next part. Term involved. First is electrolysis. So now electrolysis is the decomposition of the chemical compound. Hey, the electrolyte should be always in which form? Fused or molten or aqueous. Fused, molten or aqueous. Solid form में नहीं होगा बेटा. What is the basic condition for current to flow? There should be what beta? Free ions. There should be what? अच्छा, electrolysis में we take this entire unit, this entire setup is known as electrolytic cell. We'll have one container. In container, Aditi beta, what will have? This container is there. In container, we take electrolyte. Can you see those two rods here? They are known as cathode and anode. And I'll pass the current through it. Okay. चलो, electrolyte क्या होता है? What is electrolyte? The substance which will allow the electricity to pass through it. The solution which I'm taking, it should allow the electricity to pass through it. That is electrolyte. If a substance is not allowing electricity to pass through it, then it will be what? Non-electric. So electrolyte, electrolyte are generally which compound? Ionic compound and polar covalent. And क्योंकि जो भी आयंस बनाएगा वही इलेक्ट्रोलाइट होगा. पोलर कोवलेंट अंडरगो आयनाइजेशन. रिमेंबर ना? एन आयनिक कंपाउंड अंडरगो व्हाट? Polar. So who all can be electrolyte? Ionic compound and polar. Examples वो मैं बाद में बताऊंगा तुमको. चलो, इलेक्ट्रोलाइट में भी there are two type of electrolyte. One is what बेटा? Strong and one is weak. Strong में क्या होगा बेटा? यहाँ पे देखो. डन डन. Strong electrolyte dissociate completely. And जो बल्ब हम लोग जब लगाएंगे ना, it will burn very brightly. देख बेटा. And it will allow large amount of electricity to pass through. Large amount. Clear? बल्ब देख कितना मस्त ब्राइट हो रहा है ना बेटा. Okay. So, acha, whenever I take strong electrolyte, what particles it will have? It will have only ions. In exam, many times they ask this question. What particles are present in strong electrolyte? Ions only. I'll tell you when to write and what to write. Don't worry. Okay. वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर मैं लूंगा तो क्या दिखाई देगा? आप देखो मेरा बल्ब कैसे जल रहा है. देख रहे एकदम वेरी लेस. Okay, so which allows only small amount of electricity to pass through it. They are known as what? Weak. They are known as weak electrolyte. Clear है? अच्छा, इसमें particles पूछेंगे तो there will be what? Ions and molecules both. Ions and molecules both. Okay, now कभी कभी मेरा बल्ब जलेगा ही नहीं तो क्या होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट. वेरी गुड. ये देख बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, kerosene, sugar solution, glucose solution, carbon tetrachloride. All these are what? Non-electric. We do not conduct electricity. So, देख बल्ब जला ही नहीं. श्रुति बेटा, ये देख बल्ब जला ही नहीं. Oh my God. So they are what बेटा? Non-electrolyte. ये पार्टिकल्स पूछेंगे तो क्या होगा? Molecules only. Molecules only. देखो बेटा क्या क्या हो सकता है बोल. इसमें एग्जांपल देख. प्योर एंड डिस्टिल्ड वाटर, अल्कोहल, केरोसिन, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सुक्रोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लूकोज एंड व्हाट? शुगर सॉल्यूशन.
अब बेटा इधर पे आ जाओ बेटा, मैं अभी चाहता आप लोगों आपको है ना, ये एमसीक्यू में आएगा बेटा, व्हाट दे विल आस्क, तो आई वांट यू टू राइट। अभी आप ये कहाँ पर, पहला मुझे लिखने दो फिर आप लोग लिखना बेटा, है ना, मैंने आज आपको नोट दिया ना, उसमें ऊपर नीचे पीछे भी देखो, ऊपर नीचे काफी जगह है, वहां पे थोड़ा कंजूसी में लिखना, ठीक है। तो चलो बेटा अभी आ जाते हैं, पहला रुक जाओ बेटा, ये आपको कैसे पता चलेगा कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, व्हाट बेटा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, पहले तो याद रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट व्हेनेवर आई से, तो इसके अंदर पार्टिकल्स क्या होगा, आयंस ओनली, क्या हो, पार्टिकल्स में रुक जाना बेटा, पार्टिकल्स पूछेंगे तो क्या लिखोगे, आयंस ओनली, आयन, आयंस ओनली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव व्हाट बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पूछेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सो व्हिच आर द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बोलो, आयंस ओनली, रुक जाना बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा बोलो, पार्टिकल्स विल बी आयंस ओनली। अभी आपको हम पूछेंगे हाउ टू रिमेंबर विच आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अभी बेटा वी हैव नॉट डन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, बट भी मैं तुमको ट्रिक बताता, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा तुम्हारा, ओके जिसमें भी क्या होगा आपको ट्रिक में बताता, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, पहला मैं लिख देता हूं देखो, लीना के आरबीसीज, लीना के आरबीसीस, लीना के आरबीसीस, क्लियर है, या लीना ने की रब से फरियाद, ठीक है ना बेटा, ओके। हाँ ये अभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बेटा क्या होना चाहिए, दीज आर जनरली स्ट्रॉन्ग बेसिस, दे आर व्हाट बेटा, स्ट्रॉन्ग, ऑल स्ट्रॉन्ग बेस आर व्हाट बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस, दे आर व्हाट बेटा, मैं लिख देता हूं स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होना चाहिए, ए बेस में क्या होना चाहिए बोलो, ओ एच, वो एक मतलब अभी मैं क्या करूंगा इन सब के अंदर, ये जो मैंने लिखा है ना बेटा ये देखो, तो ये एल आई के मतलब क्या होता है बोलो बेटा, एल आई ओ एच, एन ए ओ एच, के ओ एच, के, ये लोग पूरा डिसोसिएट होते हैं बेटा, ठीक है ना बेटा, आर बी ओ एच, सी एस ओ एच, क्लियर है। अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या होगा बोलो बेटा, डिसोसिएट्स कंप्लीटली, डिसोसिएट्स पूरा टूट जाएगा, टूट, इसलिए तो सिर्फ आयंस बचेगा ना, डिसोसिएट्स कंप्लीटली, डिसोसिएट कंप्लीटली, पार्टिकल्स विल बी आयंस ओनली, अगर मैंने एग्जाम में पूछा NaOH कंटेन्स विच पार्टिकल, तो डोंट राइट Na प्लस NaOH माइनस, श्रेया बेटा डोंट राइट NaOH NOH Na प्लस NO, व्हाट यू राइट, आयंस ओनली, व्हाट यू राइट, आयंस ओनली। फिर और कौन होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड भी आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग, अभी आप बोलोगे कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसके लिए क्या ट्रिक है, सोनू, सोनू क्लास बिरयानी आई एट, सोनू क्लास बिरयानी आई एट, ये भाई सोनू क्लास बिरयानी, सो मतलब एसिड में क्या होगा बोलो, एच होता है कि नहीं, तो एसओ वाला कौन सा एसिड होता है, H2SO4, नो वाला कौन सा होता है, नहीं अपने को नहीं, वो वीक होता है, अस वाले एसिड सारे वीक होते हैं, इक वाले ही लेने का, हाँ ओके, इक वाले एसिड आर स्ट्रॉन्ग, अस वाले इज वीक, वीक, वो इसमें आ रहा है क्या, सोनू फर्स्ट क्लास में आ रहा है क्या, सोनू क्लास बिरयानी में आ रहा है क्या वो, अरे बोलना, अरे इसमें है क्या, सोनू क्लास बिरयानी में सीओ आ रहा है क्या, कार्बोनिक वीक होता है वो, मैं बताऊंगा तुमको, रुक जाना भाई, HBr, और आई पे से कौन आता है बोलो, टेन टेन, तो ये HI क्या होगा, ये सब कौन है बोलो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन, दे डिसोसिएट्स कंप्लीटली, दे डिसोसिएट्स व्हाट, अब बेटा इधर पे आ जाते हैं, टेन टेन, मेरा नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा आप बताओ मुझे, बोलो ना, व्हाट विल बी माय नेक्स्ट हेडिंग, क्या क्या किसका, एट नहीं, ऐसे ही वो स्टेटमेंट कंप्लीट करने के लिए दिया है, सोनू क्लास बिरयानी है एट, आ गया बेटा, एट का क्या होगा, लीना के आरबीसी का भी दिया ना बेटा, क्या है ना, लीना के आरबीसी क्यों कंप्लीट नहीं है, लीना के आरबीसी दिया है ना बेटा, तो
वो फ्रेंशियम हम लोग नहीं पढ़ते, रेडियो एक्टिव होता है वो, पता है ना। हाँ, लीना के आरबीसीज, या लीना ने की रब से फरियाद, लीना की रबड़ी सस्ती एंड फ्रेश, सब अलग अलग है बेटा। अच्छा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? क्वेश्चन विल कम, व्हाट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, तो आप क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल था ना। हाँ, पार्टिकल्स पूछोगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स एंड आयंस बोथ, मॉलिक्यूल्स एंड आयन, मॉलिक्यूल्स एंड आयन दोनों होगा। अच्छा, ये मैंने तेरे को करा दिया था ना एसिड बेस सॉल्ट, इसलिए तेरे को आ रहा है। याद आ रहा है ना, हम लोग ने एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ा था। ये क्या होगा? डिसोसिएट क्या होगा? डिसोसिएट पार्शियली, डिसोसिएट पार्शियली। अभी बेटा मेरे को बताओ, वेनेवर लीना के आरबीसीज एंड सोनू क्लास बिरयानी को छोड़ के कोई भी आएगा, अनन्या राम कुमार, लीना के आरबीसीज और सोनू क्लास बिरयानी को छोड़ के कोई भी दिखेगा तो वो क्या होगा, बोलो बेटा? ठीक है, तो अभी बेटा यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, देखो यहाँ पर। ओके, पहले मैं क्या लिख रहा हूँ? वीक एसिड। अब ये वीक एसिड क्यों है, वो पहले आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों वीक है तो सर बेटा, ये सब अभी लिखना था। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ पहले, अभी तक कुछ लिखने को बोला नहीं, अभी मैं बोलूंगा आपको लिखने के लिए। वीक एसिड क्या है? अरे आ गया ना, ये ऊपर वीक इलेक्ट्रोलाइट ही होता है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखो, ये H2CO3, ये कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड। कौन सा है? ये अभी लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, ऐसा नाम है इसका। अच्छा, छत्रीकू, छत्रीकू कौन है? अच्छा बेटा, आप मेरे को बताओ, ये सब एसिड दिख रहे हैं। हक्कू, हक्कू कौन होता था? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक। इसमें कहां पे भी आपको ए कहां पे भी आपको लीना के आरबीसी नजर आ रहे हैं? सोनू क्लास बिरयानी नजर आ रही है क्या? सोनू क्लास बिरयानी आए नहीं ना? मतलब ये क्या है भी, ट्रिक समझ में आ गया? तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले भी। हाँ, कार्बोक्सिलिक, और ये कार्बोनिक है। वीक भैंस, वीक भैंस कौन है बे? ये सारे लिखना नहीं था। रुक जाना, अभी तक कुछ बोला क्या? ए, तुमको कैसा पता चलेगा वीक है? लीना के आरबीसी इसको छोड़ के कोई भी होगा, लीना के। हाँ, तो बेटा अभी यहाँ पर देखो बेटा, क्या इसमें आपको लीना के आरबीसी नजर आ रहा है? बोलो। नहीं ना? अरे बोलो, क्या लीना के आरबीसी है इसमें? क्या इसमें लीना के आरबीसी है? क्या इसमें लीना के आरबीसी है? तो ये सारे कौन है बे? क्लियर है? ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अल्कली है, अल्कली, ये सब स्ट्रॉन्ग वाले सब अल्कली होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है उसको क्या कहते हैं? अल्कली। खाली एक ही उसमें वीक अल्कली है, ये वाला। अब बोलो। यस बेटा, यू कैन टेक बाथ आल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम। ये आराम से, कहाँ यहाँ पे लात मार के जा रही है तू यार। ठीक है, चलो। अब बेटा मैं यहाँ पे कुछ लिखने वाला हूँ। टन टन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा बच्चा लोग, बोलो ना? नो, डज नॉट डिसोसिएट ओनली। तो अगर मैंने पूछा नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स पूछेगे तो क्या लिखोगे? ओनली मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल्स विल बी व्हाट? ओनली मॉलिक्यूल्स, ओनली मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल मतलब उसके अंदर क्या होगा? वो डिसोसिएट होगा ही नहीं, नो आयंस, नो पार्टिकल्स होगा ही नहीं इसमें। अभी इसके एग्जाम्पल आपको बेटा था थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे, फिर भी मैं दे देता तुम एग्जाम्पल। क्या कहाँ पे? सुगर, ग्लूकोज बिस्कुट। सोल्यूशन। हाँ वही शुगर सोल्यूशन, मतलब शुगर, ग्लूकोज, प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, वेट, देन बेटा अब कैरोसिन, देन बेटा ये सब आ जाएगा, बेंजीन, ये सब। कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, राइट बेटा।
अच्छा अभी बेटा मैं आपको पूछूंगा एमसीक्यू। सुनो एमसीक्यू, रुक जाओ बेटा, मैं लिखने को बोलूंगा बेटा, ओके। देन आपको मैं ना एमसीक्यू दूंगा। चलो आ जाते हैं। मैं आपको ना ऐसा दे रहा हूं, यहाँ पे देखो बेटा, NaOH KOH, बराबर है। एमसीक्यू कैसे आएंगे? NH4OH, फोर्थ इज व्हाट बेटा, मैंने दे दिया मेरे को। LiOH, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट? समझ में आ गया? कर सर पाओगे? ऐसे में क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ? समझ में आया? अरे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सिमिलरली मैं एसिड के लिए भी दे सकता था, सिमिलरली मैं किसके लिए दे सकता था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी दे सकता था। आर यू गेटिंग इट? बोलो ना। अरे यार ये क्या हो गया? क्लियर है? ओके। तो अभी ये इलेक्शन किधर है? अब बेटा आप लोगों को क्या करना है, ये आ जाओ, ये पहला वाला पार्ट कॉपी करो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब हाँ नोट्स में करोगे तो अच्छा है, अगर जगह नहीं तो बाहर भी कर सकते हो। सुनो क्या क्या कॉपी करना है, सुन ले हीरो। पहले ये कॉपी करोगे, फिर ये करना है, मतलब ऐसा एडजस्ट करो, छोटे छोटे में लिखो, और ये लिखो। चलो स्टार्ट राइटिंग। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, पॉज कर देता रिकॉर्डिंग को तब तक। ये रहने दो, रहने देता। अच्छा अरे ये क्या आ गया, झिंगुर वेटिंग फॉर क्रिसमस और व्हाट? अच्छा लिख रहा है कि नहीं? ए हेलो हेलो, कम ऑन। I know. छोटा छोटा करके लिखना, क्या सोच रही है बेटा? अरे बोल ना। ए विनी तू आने वाली है तो फिर मैं नोट्स यहाँ पे रखूं कि तू नहीं आने वाली है? मैं आने वाली हूँ। तो फिर नोट्स यहाँ पे रखूं कि आन्या मेहता को दूं? नहीं नहीं, उधर ही रख दो। हाँ, कहाँ पे रख के जाऊं नोट्स? वो पता है मेरा बॉक्स, या ट्रांसपेरेंट बॉक्स है। पता है। हाँ उसमें मेरा, कितने लोग हैं? 12 जन हो ना टोटल, 12 रख के जाता हूँ। मैं भी सर हूँ। मैं भी आ जाऊंगा लेने उधर से। तू कभी आएगा, तेरा है क्या? 3:30 को ही आऊंगा। सर मैं तो आप मेरे भी तनीषा आ- या नाया को दे सकते हो नेक्स्ट बैच के। सर तनीषा, मेरे अच्छा हाँ हाँ, चल मैं तेरा अलग से दे दूं, तनीषा। क्या? ओ सॉरी। या सर मेरे भी उधर ही रख दो। तू शौर्य तो आता ही नहीं है, क्या हो गया तेरे को भाई? तेरा आज क्या टेस्ट है तेरा भी? हाँ सर। तो ये क्या नेक्स्ट संडे को भी टेस्ट होने वाला है तुम्हारा? नो सर, नहीं ओनली दिस सर। संडे। चलो ये कॉपी हो गया, नहीं, हो गए 23 चैप्टर से। जल्दी जल्दी करो भाई कॉपी। सुरेश। ये व्हेन इज योर टेस्ट? कुछ आया क्या स्कूल का शेड्यूल? कमन अगस्त 26। अगस्त 26। और टाइम। चैप्टर कितने हैं, कौन से केमिस्ट्री में? और कौन से? गाने के अलावा ऑर्गेनिक है, मोल कॉन्सेप्ट भी है, पीरियोडिक वो हो गया केमिकल, और इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद मेटलर्जी शायद करेंगे वो लोग। बोले मेटलर्जी। हाँ एसिड बेसिस भी है, चालू हुआ है क्या किसी के बैच में? हाँ मेरे को बता देना चालू करने वाले। हमारे में कौन सा? नहीं इलेक्ट्रोलाइसिस को टाइम लगेगा बेटा। चलो डन डन। नेक्स्ट संडे खत्म कर दो। हाँ नेक्स्ट संडे खत्म। और अप्रैल के बाद क्या है? हमारे क्लास में केमिस्ट्री में क्या था? ये पहला हो गया कॉपी? नहीं सर रुको ना। अरे जल्दी यार, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला लिखा कि नहीं? हाँ सर हो गया। और यार ये मेरा एग्जाम में मैंने अगर आपको बोला HCl कंटेन विच पार्टिकल्स, आयन समझा कि नहीं? NOH कंटेन्स विच पार्टिकल्स, आयंस। ये हो गया। हेलो, ये बेटा अपना एसिड बेस में भी काम में आएगा बेटा। एसिड बेस में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, वो बाद में। चलो डन डन। हाँ फिजिक्स वाला
चलो डाल। ए डन क्या ये? चलो ये वाला कॉपी करो, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या हो गया भाई हीरो, सदमे में है क्या? कॉपी कर वीक इलेक्ट्रोलाइट। कंजूसी में लिखो, कहां पर भी एडजस्ट करो। ए बेबी व्हाट हैपेंड? तूने लिख लिया वीक इलेक्ट्रोलाइट? ओ माय गॉड, कब? ऑनलाइन स्टूडेंट तुम लोग यार, इतने लोग ऑनलाइन आज क्यों है? मैंने डाला भी था आप लोगों को ऑफलाइन आना है। सर वेंटिलेटर्स के डिस्गस्टिंग। पास। ये अगर मैंने एमसीक्यू में पूछा एसिटिक एसिड कंटेन्स विच पार्टिकल्स, तो आप क्या लिखोगे? आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। ये याद रखना, समझा ना? ऐसा मत लिखना एसिटेट NH प्लस, ऐसा मत लिख। NH4OH कंटेन्स विच पार्टिकल? हाँ, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस ओनली, मतलब बोथ, सॉरी मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। क्या बे? पता नहीं, पढ़ाई बड़ा इज्जत से करा। ऑर्गेनिक में सब तू बोल देता था मैं। 19 जुलाई के बाद क्या है? 19 जुलाई के बाद पड़ा है। कुछ नहीं, क्या फीफा फाइनल के बाद हाँ अर्जेंटीना वन? यस 3 बार ना। मैंने वोट किया वर्ल्ड कप का 20 ठीक है बेटा। बाकी है। हाँ तो वही कोई ना। बात नहीं, क्वार्टर फाइनल तो जीत गया ना भाई। ठीक है। और इंग्लैंड इंग्लैंड को तो ऐसा ऐसे हरा देगा। नहीं सर, इंग्लैंड इजी नहीं रहेगा हराने। हाँ, ठीक है भाई, देखेंगे। चलो डन डन कॉपीड। चलो सर स्पेन फ्रांस में आपको कौन अच्छा लगता है? फ्रांस नहीं, स्पेन जीतेगा। चलो डन। सर एक मिनट। अरे यार जल्दी जल्दी लिख भाई। नाउ विच व्हाट वी आर गोइंग टू डू, बोलो आ जाओ। हेलो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट आओ क्या, बोलो हेलो। ए भाई फोन फेंक देगा तुम लोग दोनों का, दिमाग खराब मत करो। हो गया क्या सबका? चलो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पूछेगे एग्जाम में क्वेश्चन, तो क्या बोलोगे? ओनली मॉलिक्यूल्स। लिखो, ये कॉपी करो, कहां पे भी एडजस्ट करो ना भाई थोड़ा। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, आंखों में आंसू आ गया। या वेरी नाइस, बस नो टॉकिंग, नो टॉकिंग, कम ऑन। अच्छा, इसमें मैं अभी आपको क्वेश्चन क्या दूंगा? 3 इलेक्ट्रोलाइट दूंगा और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट दूंगा, तो आप एमसी वो कर पाओगे ना एमसीक्यू में? या फिर मैं क्या दूंगा? 3 नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड 1 इलेक्ट्रोलाइट एंड आई विल आस्क यू विच इज इलेक्ट्रोलाइट। कर पाओगे? ऐसे भर भर के एमसीक्यूज आते हैं। देगा कान के नीचे, पढ़ा हुआ है चैप्टर, 10 मार्क तक का आता है इसमें। 10 मतलब देख, ऐसा वो फिक्स नहीं रहता, रेंज में आता है, ठीक है ना? इसमें एक जनरली ना वो इलेक्ट्रोलाइसिस वाला क्वेश्चन आता है 4 मार्क के लिए, मतलब डायग्राम दिया रहेगा, फिर बोलेगा व्हाट हैपेंस एट एनोड, व्हाट हैपेंस। हाँ हाँ वैसा ही था। वेरी गुड, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का वो बताऊंगा मैं तुमको बाद में। बोर्ड में सबसे वेटेड चैप्टर कौन सा? वेटेड एच में देखा जाएगा तो कंपाउंड्स आता है। कंपाउंड में एच में 4 पार्ट्स डिवाइडेड है ना बेटा, तो देयरफॉर वो 4 चैप्टर का मिक्स होके आता है उससे। तो बेसिकली अगर देखा जाएगा तो एक ही चैप्टर है, और लेकिन वो लोग का ऐसा फिक्स नहीं रहता है, ऐसा रेंज में देते वो लोग, ठीक है? चलो डन। अरे डन डन, ऑनलाइन स्टूडेंट डन। यस चलो अभी बेटा आगे बढ़ेंगे। यस ओके। अभी आप लोग बोलेंगे सर आपने ये सब जो पढ़ा है वो कहाँ है, वो भी मैं सब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बता रहा हूँ। आ जाओ इधर पे। ये बेटा मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, लेकिन फिर से करा रहा हूं मैं। पापा कार्टून। पापा कार्टून, पापा कार्टून।
ये हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा था, याद आ रहा है कि नहीं? बोलो बेटा। पापा मतलब पॉजिटिव एनोड झिंगे। ए फॉर एनोड। तो एनोड इज विच टर्मिनल? पॉजिटिव। कार्टून कैट, कैथोड। कैथोड इज विच टर्मिनल? एन, नेगेटिव। ये बच्चे भूल जाते, बार बार मिस्टेक करते हैं इसमें। ए गब्बास बेबी, नेगेटिव। अच्छा बेटा, अगर मैं एक आयन हूं, मैं कौन हूं? आयन। और मेरे पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो मैं किसके पास जाऊंगा? नेगेटिव के पास या पॉजिटिव के पास? तो मैं किसके पास जाऊंगा? एनोड। तो एनोड के पास जो आयन जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनायन। तो अनायंस आर व्हाट बेटा? नेगेटिव। अनायंस आर। अच्छा, एन एनोड इज व्हाट? अरे यार ये क्या हो गया? एनोड इज व्हाट बेटा? पॉजिटिव। अनायंस किसके पास जाता है? एनोड के पास जाता है कि नहीं? तो क्या होगा बोलो बेटा? नेगेटिव। बराबर है। ए भाई, मैं एक आयन हूं, मैं एक कौन हूं? आयन। आयन, और मेरे पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, क्या चार्ज है बोलो बेटा? तो मैं किसके पास जाऊंगा? तो मैं कौन सा आयन हो जाऊंगा? मैं कैथोड के पास जा रहा हूं ना, इसलिए मेरा नाम क्या हो जाएगा? कटायन। तो कटायन अभी क्या होगा, अभी समझा क्या? बोलो ना। कैथोड इज नेगेटिव, कंफ्यूज मत होना, एंड कटायंस आर पॉजिटिव। क्लियर है? फिर आपका और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है एग्जाम में, ये याद रखना। भूल गए आप लोग? एनॉक्स लियो। क्या याद रखने का? लियो। एनॉक्स लियो। और दूसरा मैंने क्या बोला था? रेड कैट। क्या है? रेड कैट फ्रॉम जर्मनी। रेड कैट फ्रॉम जर्मनी। इसका मतलब क्या हो गया? एन का मतलब, हाँ वो तो पता है, एनोड। लेकिन एन, एन वेरी गुड, एन मतलब एनोड। एनोड पे क्या होगा? विच प्रोसेस विल टेक प्लेस? ऑक्स। सो एनोड पे देयर विल बी ऑलवेज ऑक्सीडेशन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस। ई क्या होता है बोलो बेटा? इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? ऑक्सी। मैं शॉर्ट में लिखूं क्या? ए रेड कैट का मतलब क्या होगा? रेड मतलब, बोलो, लाल बिल्ली मत बोलो, रिडक्शन। रिडक्शन कहां पर होगा? कैथोड। अच्छा, ये रिडक्शन का मतलब क्या है? जर्मनी का तीन लेटर देखो। गेन। ये क्या है? ई ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? रिडक्शन। घेऊन टाक। Come on, copy this. Shut your mouth and copy. Wow, wow. I want you all to copy this. This we are going to use this entire chapter, bro. Enox Leo and Red Cat from Germany, bro. I want you all to copy this now. Ten, ten, ten. Argentino. Come on. Because we are going to use this again and again. Papa Carto. Positive. So you should remember anode is positive, but anion is negative. Anion का नाम anion क्यों गिरा? ये ion था, since it was going to anode, therefore it is. समझा क्या? क्लियर है? सब बताऊंगा बेटा, कहाँ पे कैसे यूज करना है, पहले बेसिक चीज है। ठीक है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑल आई होप ऑल ऑफ यू आर कॉपिंग दिस। कि मैथ्स पढ़ने मत बैठो अभी।
ये बेटा मतलब आपको बेसिक चीज याद रहेगा, देन ओनली दिस चैप्टर विल बिकम इजियर, अदरवाइज इट विल बिकम टफ। हाँ ठीक है क्या? बुटियंस क्या कर रहा है बे? Yes, sir. सुपर बॉय। ए त्विषा कितना मिला रहे तेरे को? यू एक मार्क गया। हट। जगमोहन दालमिया कितना मिला बे तेरे को? शे, डोंट टॉक टू मी। राम कुमार। हम्म हम्म। आर्यन तेरे को कितना मिला? डाउट इब्राहिम, इतना डाउट पूछ के भी 28। शे, तेरे को कितना मिला बे? हाँ हीरो ए अद्वैत, पढ़ा दो दो तीन तीन जगह से पढ़ाई करके भी 27 है। तेरे को कितना मिला बे? Oh, this Garba girl, how much you got? Oh my, we want to play Garba, then you're not sick, and then we have to give test, you're sick. हाँ दीदी। चलो डन डन ए। अबे यार जल्दी करो ना, कहा यार कल सुबह पनवेल जाना है, जल्दी करो। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट डन डन डन। Yes, sir. अब बेटा मैं आपको बताता हूँ, सुनो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यार ये कॉपी ये कर लेता हूँ ना, मैं भूल जाऊंगा। हाँ ये मैं ले कर देने दे मेरे को एक बार। भूल जाऊंगा। आई यूज दिस इन नेक्स्ट बैच। चलो बेटा ए, नाउ लुक, आई ए गा बस काय रे, थोड़ा मेरे को अभी है ना मस्त एकदम लिखने दो ये बेटा। वाओ, 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 ओ माय गॉड। चलो बेटा, बेटा अभी इलेक्ट्रोलाइसिस में व्हाट वी डू, वी टेक दिस वेसल ऐसा। ओ सॉरी, अपने पास ये फैसिलिटी था ना, क्यों हम लोग ने यूज नहीं किया? वाह, ओके नाउ लुक, यहाँ पे देख, these are two rods, these are electrode. Now this is connected to which terminal? Positive, बड़ा वाला positive, छोटा वाला कुंजम कुंजम is negative. So this is what? Positive terminal of the battery. This is which terminal? So the ऐसे notation we have to give ना differentiate करने के लिए बेटा, okay? These are basic no. These are basic notation which we take. This is what beta? A electrode which is connected to the positive terminal is called as what? Anode. Anode. Anode is which one? Papa. 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 Positive. कार्टून बाद में बोल, लेकिन पहले क्या आया था? दिस टर्मिनल इज कनेक्ट, दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सो व्हाट विल कॉल इट एज? कार्टून, no, cathode negative. Clear? So in exam they will ask you what is anode and cathode. The electrode which is connected to the positive terminal of the battery is anode. The electrode which is connected to the negative terminal of the battery is what? Cathode. Clear? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई difficulty? And this entire, अच्छा इसके अंदर what I'm going to take? Electrolyte. What I'm going to take? Electrolyte. So electrolyte is a substance which conduct electricity. Electrolyte. ठीक है? चलो अब बेटा एग्जाम, अभी आपको मैंने अभी तक जो कुछ भी बताया वो हम तुमको बताते, इधर अभी आ जाओ। डन डन, इलेक्ट्रोलाइसिस में तुमको वापस बताऊंगा एक बार मैं एग्जांपल पूरा कंप्लीट करने के बाद। टुडे व्हाट वी स्टडीड, बोलो बेटा।
Electrolyte compounds which conduct electricity in which state fused or molten or aqueous and undergo chemical decomposition due to the flow of current through it. They are what? Electrolyte. Non-electrolyte क्या होगा? Do not cut. अच्छा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ पे मैं बार बार आपको लगातार बोलता हूं, फिर भी यहाँ पे बोलता हूं, पार्टिकल्स पूछेगा तो क्या लिखोगे? पार्टिकल्स इसमें आएगा तो क्या लिखोगे? मॉलिक्यूल्स ओनली. फिर से लिख लो वहां पर. What is given here? Strong electrolyte dissociates completely and large amount of electricity. A. Strong electrolytes में पूछेंगे particles. हाँ, वापिस लिखो, बार बार मैं लिखवा रहा हूं. Ions only. बोल बे. Weak electrolyte partial क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस में वो सब मैं बताऊंगा. रुक जाओ, कैसा क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा. Why don't you just shut your mouth, bro? Okay. पार्टिकल्स में क्या होगा बोलो? वीक इलेक्ट्रोलाइट में बोलो. हाँ, तो आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ लिख ले वापिस वहां पे जगह में. Is it the particles present or is it the particles that it forms? It is present when it is in the solution form. Okay. सब बताऊंगा ब्रो, पूरा डायग्राम के साथ बताऊंगा भैया. हाँ, तो स्टेट होगा ना वो लोग का फ्यूज. हाँ हाँ हाँ. ओह, थैंक यू ब्रो, सो कंसर्न, वेरी नाइस, अप्रिशिएट. चलो, लिख दिया ये? अरे बोलो ना, फिर से बार बार मैं लिखवा रहा हूं. ए हीरो. हाँ चलो, डन डन. ओ भाई, गर्ल्स हियर. चलो चलो, हो गया. ये उतानी उठिया. यहाँ पे देख, सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. दिस अरेंजमेंट. ए the vessel in which the electrolysis is carried out using voltameter contains electrode, anode, cathode and electrolytic solution. मैंने बताया था ना अभी डायग्राम, सब कुछ था कि नहीं वहां पे? मृदनी बेटा क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे देखो. फिर इलेक्ट्रोड क्या होता है बेटा? मैं एक इलेक्ट्रोड हूं तो आई विल अलाउ ओनली द पैसेज ऑफ करंट. आई विल अलाउ ओनली पैसेज ऑफ करंट, बस. हाँ, तो भी कौन सा? तो वो क्या होगा वो बताओ. आई विल अलाउ आइदर इलेक्ट्रॉन्स टू एंटर और लीव, इलेक्ट्रिक करंट टू एंटर और लीव. ए इलेक्ट्रोड्स, तो व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स का डेफिनेशन पूछेंगे तो क्या लिखोगे? अलाउज इलेक्ट्रिसिटी करंट टू एंटर और लीव. बराबर है. अच्छा, लेकिन अभी मैंने आपको पूछा व्हाट इज एनोड? पा पॉजिटिव. द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल. कैथोड, कार्टून. इट इज द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू, याद रहेगा ये? वेरी गुड. इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन ये हम लोग ने कहां पे पढ़ा था? टेल मी. सेकेंड चैप्टर. अच्छा, मैं आपको बता देता. यहाँ पे क्या होता है डिसोसिएशन में? क्या होगा? सेपरेशन ऑफ आयन बाय पासिंग. अच्छा, ये रिमेंबर. अच्छा, दिस ए राम कुमार, ये देख NaCl पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है कि नहीं? बोल बेटा. तो बस इसके अंदर मैं करंट पास करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा. सेपरेट. These ions were already present and they got what? Separated. That is dissociation. Okay, what is ionization? हाँ, अश्लेषा. वो भी कौन सा होगा? Which compound? पोलर. देखिए HCl पोलर है, इसको मैं पानी में डालता था. स्टार्टिंग में आयंस है क्या अश्लेषा? अभी क्या हो जाएगा? हाँ, ओनली पोलर. अब इट फॉर्म्स आयन. देख रहा है, फॉर्मेशन ऑफ आयंस. क्लियर है? और कोवेलेंट, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ये दोनों एग्जांपल वहां पे लिख दो दोनों के सामने. इसलिए ऑनलाइन स्टूडेंट में बोल रहा था, आते थे यहाँ पे, अपने दोस्तों से कॉपी कर लेना. अब देख, सेपरेशन, आयंस वर ऑलरेडी देयर. NaCl is an ionic compound, so ions are there or not? They just got separated. HCl में there were there ions here in water and HCl? No, na? When you dissolve HCl in water, it forms ions. Here molecules form ions. Here ions were already there, which just got separated. Yeah. Copy this. Oh, I like the earrings. Wow. I'll also wear one.
अय्या द ईयर। चलो डन डन। ए बेड़ा लिखने यहाँ पे क्या कितना हो गया। टेस्ट कैसे गया था एग्जाम, बुलाएगा कि नहीं? करेक्ट कौन कर रहा पेपर भेजा नहीं तूने मुझे, कि भेजा था क्वेश्चन पेपर? कौन भेजेगा? चलो यार यू कैन गिव इट द स्मूच क्विकली। इसने ऐसा किया था। ओह माय गॉड, ही वांटेड फ्रॉम यू आई गेस। He was in that pose for 5 seconds. I saw that twice actually. 10 minutes earlier also you're asking for one. अच्छा we all close. Hi, चलो go come do it. Come on, yes, go ahead man. चलो done. Okay. Okay, anyways. Now बेटा अभी आ जाओ. This is very important. Hey girls here please. ओके देखो बेटा, अभी मैंने आप लोगों को क्या बता दिया, पहला सुन लो। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी डिस्कस्ड। अर्नव बेटा, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी डिस्कस्ड। ओके, केमिकल कंपाउंड विच विल कंटेन इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन फ्यूज्ड और एक्वेस फॉर्म और मोल्टन फॉर्म। फ्यूज्ड क्या होता है मैं तेरे को बताऊंगा अभी सुन। फ्यूज्ड मोल्टन, फ्यूज्ड एंड मोल्टन दोनों सेम होता है, ठीक है? वो क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा। और इन श्रिया बेटा, और इन एक्वेस फॉर्म। अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बोला तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो सकता है? आयंस भी हो सकता है एंड आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ भी हो सकता है। हम लोग ने अभी तक स्ट्रॉन्ग वीक नहीं डिस्कस किया है, स्ट्रॉन्ग वीक नहीं डिस्कस किया है, ठीक है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड पार्टिकल्स क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होगी। अच्छा ये एग्जांपल मैंने अभी आपको करवा दिए थे कि नहीं सारे, बताओ आपको। अच्छा मेरे को एक काम करो बेटा, यहाँ पर ये, हाँ यहाँ पर देख रहे हैं ये बेटा, ये सब स्ट्रॉन्ग वाले थे बेटा, ये सब ठीक है, मैं सब स्ट्रॉन्ग वाले थे एक्चुअली। फिर अगर मैंने आपको पूछा अलग से डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक, आर्यन अग्रवाल डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक मैं बोलूंगा तो स्ट्रॉन्ग में डिसोसिएट कंप्लीटली, वीक में डिसोसिएट्स पार्शियली, स्ट्रॉन्ग में ओनली आयंस। यहाँ पे क्या होगा? आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? ओके ओनली खाली मॉलिक्यूल्स ही होगा उसमें, दूसरे में क्या लिखा है? तो बाहर आयंस ओनली और आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। ले भाई खुश, जाना मरना, ये ले आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। ब्रेक काय देगा रैप्टा ब्रेक आया। डाइल्यूट कम, सब मैं बताता हूं, दिमाग खराब मत कर, अभी तो मेन पार्ट ही स्टार्ट नहीं किया है, अभी सब बताता तेरा दिमाग खोल। वेट 2 मिनट्स, 2 मिनट्स आई सब तेरा डाउट सॉल्व होगा, मेरे को बताने दे। रुक तो जा बेटा, सुन तो सही, मैं तेरे को सब बताता। ये देख 2 मिनट रुक जा बेटा, मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स आना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट बेटा तेरा 2 तरह का होगा बेटा। इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप का होगा अर्णव बेटा? 2 टाइप। पहला कौन सा होगा? ये देखो बेटा, नहीं वो वीक वाला जानते, अभी मैं क्या कर रहा हूं, पहले होगा बेटा फ्यूज्ड या मोल्टन, फ्यूज्ड या मोल्टन। दूसरा क्या होगा? एक्वेस, एक्वेस, फ्यूज्ड या मोल्टन। और क्या होगा? व्हाट डू मीन बाय फ्यूज्ड एंड मोल्टन? अभी तेरा डाउट पूरा वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? फ्यूज्ड, अच्छा सॉलिड फॉर्म में मैंने अगर नमक लिया है बेटा, सॉलिड फॉर्म में वो करंट पास करेगा क्या? तो बेटा देखो यहाँ पे मैंने सॉलिड NaCl लिया था, सॉलिड NaCl मैंने क्या लिया था? सॉलिड। वो करंट पास करेगा क्या? क्योंकि नो फ्री आयंस, नो फ्री आयन। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको देख बेटा, इसको अगर बेटा मैंने हीट कर दिया, क्या कर दिया? हीट, हीट करूंगा तो ये NaCl तेरा क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा, मेल्ट, फ्यूज हो जाएगा। अब समझा क्या? तो अभी इसके अंदर बेटा आयंस हो गए कि नहीं बोल? तो सॉलिड NaCl अगर होता, सॉलिड होता तो क्या होता? नॉन कंडक्टर, सॉलिड होता तो। लेकिन अगर तूने इसको पिघाल दिया, मेल्ट कर दिया, पानी नहीं डाला याद रखना बाहर से, तो अब इसके अंदर बेटा ये तेरा, यहाँ पे सिर्फ NaCl था, लेकिन अभी इसके अंदर क्या होगा बेटा? Na+ एंड Cl-। तो कहने का मतलब है जो भी तेरा फ्यूज्ड या मोल्टन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? गर्म कर देते हैं, तो वो क्या क्या पैदा करेगा? आयंस। तो बेसिकली लिक्विड में होता है। लिक्विड, हाँ लिक्विड मतलब पानी नहीं डाला, लिक्विड में होता नहीं था, उसको हम लोग ने हीट करके लिक्विड में कन्वर्ट किया।
हाँ वही, वो फ्यूज्ड या मोल्टन होता है। अब समझा क्या बेटा, व्हाट इज फ्यूज्ड और मोल्टन? हाँ, थर्मल डिसोसिएशन, लेकिन बट वेरी हाई टेम्परेचर। ओके, क्लियर है? समझा क्या? अच्छा, अब बेटा एक्वस का मतलब क्या होगा? हाँ, NaCl इन वाटर इन। अच्छा, ये यहां पर अपने पास सिर्फ कितने आयंस होते थे? दो ही होते थे, देख रहे हैं ना बेटा? यहाँ पे कितना आयंस था? ओनली टू। अब बेटा NaCl डिजोल्व इन वाटर करूंगा तो क्या क्या मिलेगा मेरे को? NaCl क्या देगा? Na+NCl-। और पानी भी है कि नहीं, बोलो बेटा? तो पानी डिसोसिएट होके क्या देगा? NOH। तो अभी सोल्यूशन में यहाँ पे कितने आयंस हो गए? ओ माय गॉड, यहाँ पे देख सोल्यूशन में कितने लोग हैं? चार। क्लियर है? कभी भी एक्वेस होगा तो मिनिमम चार अंदर होगा, मतलब मिनिमम नहीं, मतलब डिपेंड करेगा। अगर मैंने HCl लिया है तो फिर H+H+ तो सेम हो जाएगा ना बेटा, राइट ना? तो कौन सा वाला है? अरे तो रुकना बाबा, पहला बेसिक तो करवाने थे, ये हो गया। फ्यूज्ड मोल्टन समझा क्या? अच्छा, अभी मैं तुमको सबसे पहला इलेक्ट्रोलाइसिस कौन सा बता रहा हूं, देखो। नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद ही दूंगा मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एकदम रिदमिक में हम लोग कर देते हैं। आ जाओ। जगमोहन दालमिया, मैंने अंदर क्या लिया बोल? मोल्टन या फ्यूज्ड NaCl, मोल्टन और फ्यूज्ड NaCl। तो अभी तू मुझे बता, अंदर कौन से आयंस हो गए बोल? Na+, बहुत सारे Na+ और Cl-, खाली दो नहीं होते, बहुत सारे Na+ Cl-। भूतानी, अभी तू मेरे को बताएगा। अभी मेरे को बता, यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन था, वो कहां पे जाएगा बोल? वेरी गुड, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इधर पे जाएगा। और ये Cl- कहां पे जाएगा बोल? ये इधर पे जाएगा कि नहीं? अच्छा बेटा, अभी देख यहाँ पे Cl- कहां पे जा रहा है? एनोड पे। अभी देख Cl- कहां पे गया? एनोड पे। ये एनोड पे विच रिएक्शन टेक प्लेस, भूल गया क्या? ये देख, एनॉक्स। ये ऑक्सीडेशन में वो क्या करेगा? प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देख बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो अभी देख इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये देख इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या बनेगा? तो बेटा ये Cl- यहाँ पे गया, तो इसने यहाँ पे क्या दे दिया? देख, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया कि नहीं? तो इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या दे दिया? ए, अभी आप मेरे को बता, ये प्रोसेस था बेटा, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्जाम में पहला क्वेश्चन और एक क्या आएगा? एनोड इज विच इलेक्ट्रोड का, एनोड का दूसरा नाम क्या होगा बोलो बेटा? ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। विच इलेक्ट्रोड? ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। ऐसा बहुत बार MCQ में आया हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा, ए मृदनी, मेरे को भी यहाँ पे बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? ये इलेक्ट्रोलाइट था ना अपना बेटा, दिस वाज इलेक्ट्रोलाइट और नॉट? टेल मी, दिस वाज अवर इलेक्ट्रोलाइट और नॉट? इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रॉन बाहर गया कि नहीं? यहाँ पर देखना बेटा, अरे Cl- का इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखना, इसमें रॉड पे चला गया कि नहीं? तो एनोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है सुन, एनोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर इलेक्ट्रॉन लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रॉन लीव्स इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रॉन लीव्स इलेक्ट्रोलाइट, और कहां पे चला गया? इलेक्ट्रोड पे। MCQ में इलेक्ट्रोलाइट क्या है? झिंगा, ये सोल्यूशन है। अबे इसमें से गया कि नहीं बाहर? मोल्टन फॉर्म है, अंधा है क्या बे? यहाँ पे क्या बताया था ये देख, फ्यूज्ड या मोल्टन में क्या होता है? ये लिक्विड फॉर्म में है कि नहीं? पानी नहीं डाला है। इलेक्ट्रॉन लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रॉन या बस लीव्स इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अच्छा, ये तुमको पता है ऐसा एक ही Cl- होगा क्या सोल्यूशन में? बहुत सारे, तो और एक Cl- लिया तो क्या बन जाएगा? Cl। अच्छा, इन दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? Cl- 2Cl। लूजेज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? टोटल 2। और ये Cl बन के क्या बन जाएगा? तो तुमको पता है यहाँ पर विच कलर्ड गैस इज रिलीज? यहाँ पर क्लोरीन गैस इज रिलीज, ग्रीन। इनफाइनाइट होता है ये 3 कैसे होगा? अंदर सोल्यूशन में तो इनफाइनाइट होगा ना। और Cl मिलकर Cl2 बनेगा। Cl3 बन सकता है क्या? एटॉमिसिटी क्लोरीन का इज हाउ मच?
सो रहे हैं क्या दोनों जन? तो फिर ओके, अभी यहाँ पर सुन बे येड़े, तू रखिया यहाँ पे आ जा। फिर और नाम क्या है? मैं विवान तू रखिया, तो तू भी विवान है, दोनों तू भी विवान है। अच्छा चलो यार, अभी सोन यहाँ पे ये विवान तू रखिया। हाँ तू रखिया। अभी कैथोड के पास कौन जाएगा? Na+। ओके, Na+ जाएगा कि नहीं? अच्छा, अभी कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? रेड कैट। तो अभी Na+ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा? हाँ, अब ये इलेक्ट्रॉन ये जो गेन, अच्छा, और ये क्या बन गया? विच प्रोसेस? 10 एग्जाम में पूछेंगे, कैथोड इज विच इलेक्ट्रोड? वेरी गुड, reducing electrode. Which electrode? Reducing electrode। यहां से ये इलेक्ट्रॉन जा रहा था, देख रहे हैं ना बेटा? ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, और यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बोलो? एंटर कर रहा था, और ये ही इलेक्ट्रॉन को Na+ ने लिया। ये इलेक्ट्रॉन देखा बेटा? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बोलो? एंटर्स द इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? इलेक्ट्रॉन एंटर। इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ही डाउट था। हाँ बोल, अभी एक एक करके मैं सब बताता, सुनो। यहां से इलेक्ट्रॉन लीव किया कि नहीं? यहां से क्या कर रहा है? एंड। MCQ में बहुत बार आता है, क्लियर है? ये मेरा आयन कहां पर गया? इनफाइनाइट होते भाई, तो एक ही इलेक्ट्रॉन आते रहेगा क्या? इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन जाएगा, इनफाइनाइट आते रहेंगे। समझ में आ रहा है? ओके। अब बेटा यहां पर देखिए, ये वाला आयन पॉजिटिव था, किस पे गया? कैथोड पे, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? कट आयन। ये वाला मेरा एनोड पे गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? अनायन। तो ये अनायंस गेट डिस्चार्ज। ए भाई, पहले ये अनायन पे चार्ज था कि नहीं बोल? अब इस पे चार्ज है क्या? तो अनायंस गेट डिस्चार्ज एट एनोड। कटायन पे चार्ज था, भूटानी, ए क्या दे? भूटानी, ये कटायन था कि नहीं? फिर ये कहां पे गया बोल? कैथोड पे। इस पे चार्ज था कि नहीं बोल? अब यहाँ पे क्या हो गया? इसका चार्ज गायब हो गया कि नहीं? टू इट गेट डिस्चार्ज। और ये यहाँ पे कौन चिपक जाएगा इसके ऊपर बोलो? हाँ, तो इस पे अभी मैं ऐसा, ये सोडियम यहाँ पे जा रहा है ना, तो इस पे सोडियम मेटल चिपक जाएगा, गेट डिपॉजिटेड। ओके, या इन द सॉलिड फॉर्म बोल। हाँ, द सॉलिड फॉर्म। अभी आर्यन बोल, तेरा क्या क्या डाउट है बोल? अभी पक्का? अच्छा सुने, तू रख किया, और तुम लोग का कुछ क्वेश्चन था, अभी पूछो, कोई क्वेश्चन है? हाँ यार, बताऊंगा। पहले बोल्टन में कोई डाउट है क्या? एक एक पॉइंट समझा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पूरा बताया, इलेक्ट्रॉन एंटर्स एंड इलेक्ट्रॉन लीव्स वाला भी। नाउ मैं पहले इसका है ना सेव कर लेता, वरना फिर है ना बाद में मैं भूल जाऊंगा, सो आई दैट आई कैन यूज इन द सेकंड बैच ना ब्रो। हाँ बोल। मैं एक्वेस की बात नहीं कर रहा, बताऊंगा ना बेटा, उसका कॉन्सेप्ट अभी मुझे करने तो दो। हाँ, ब्रेक देता हूं, ब्रेक देता हूं, 2 मिनट रुक जा, दे रहा हूं मैं, दे। हाँ, जहां पे रिडक्शन हो रहा है अभी येड़े शे। हाँ, अरे बेटा इतना प्यार से मैंने बताया, देख क्लोरीन यहाँ पे गया, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऑक्सीडेशन में गया, जहां जो इस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। यहाँ पे बेटा Na+ गया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है इसलिए उसको क्या बोला? रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड। बोलो। नहीं, ये हाई टेम्परेचर हम लोग ने भी यूज जनरली इनर्ट इलेक्ट्रोड, विच इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट, और उनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। हाँ, लेकिन एकदम वेरी हाई टेम्परेचर, बट ये हम लोग नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं। हाँ, इनर्ट है, प्लेटिनम इन ग्रेफाइट। हाँ, तो मोल्टन है तो क्या हुआ? पिघला हुआ लिया, तो वो इतना हाई टेम्परेचर नहीं बेटा। तो मुझे अभी पता चला कि तनीषा ऑनलाइन आ रही है, तो आर्या है क्या अभी क्लास में? आर्या? आर्या कौन है यहाँ पर? आर्या नहीं है बेटा। अच्छा,
अच्छा देन कोई बात नहीं, मैं बाद में ले लूंगी। ओके बेटा बस इधर अगर ए श्लोक दियान रुवीर आएंगे आप उन्हें दे देना। विवान कौन पूरा किया? नहीं सर, श्लोक दियान या रुवीर हाँ अगर रुबीर, अच्छा आएंगे अच्छा ना। अच्छा, ठीक है, ओके ओके। नहीं मेरे को ऐसा नाम सुना है, क्या हो तुम लोग हंस क्यों रहे हैं? ओके हाँ। तू रहता है क्या वहां पे लोडा साइड में? और 2-3 आ जाएगा। हाँ मिल जाएगा। ए विवाद तुरकिया को दे दूं क्या, आया है वो? नहीं, नहीं सर, श्लोक को ही देना। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो एनीवेज ओके आगे बढ़ते हैं। ए, सर ब्रेक दो ब्रेक दे रहा हूं ना, दो। सर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूसिंग एजेंट के इधर आ जा। ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को बताने दो बस, फिर मैं ब्रेक दूंगा तुमको, इधर आ जाओ। पहला चीज यहाँ पे देखो, ये एनोड कैथोड दिखाई दिया मेरे नोट्स में है। मेरे नोट्स में एनोड कैथोड दिखा, फर्स्ट पेज पे ही है। यहाँ पे देखो एनोड का क्या नाम है, बोलो ऑक्सीडाइजिंग क्यू है, समझ ए प्लीज बेटा देख, ऑक्सीडाइजिंग क्यू है समझा। कैथोड क्या है बोलो, क्यू है अभी समझा। ए एनोड इज द पा पॉजिटिव कनेक्टेड टू विच टर्मिनल, पॉजिटिव। एनोड इज कनेक्टेड टू विच टर्मिनल, अच्छा। ये विच आयंस माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड, एनायंस। विच आयंस माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड, एनायंस। क्या हो गया बेटा, वहां पे एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज हुआ कि नहीं टू न्यूट्रल एटम, देखा। और वो लोग ने डोनेट किया कि नहीं अपना इलेक्ट्रॉन, अरे Cl माइनस वहां पे जाके, अब समझा एक एक वर्ड। कैटायन गेन्स एंड गेट रेड्यूस्ड। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनोड पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन लीज इलेक्ट्रॉन, कैथोड इलेक्ट्रॉन। अभी फिलहाल फिर भी बेटा ये हम लोग ने लिखा है, तो यहाँ पे खाली ना मैं एक चीज लिखता हूँ, यहाँ पे ऐसा ये लिख लो बेटा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Na। यहाँ पे क्या होता था बोलो, Cl माइनस लूज इलेक्ट्रॉन और क्या बन जाता था, Cl बस। अभी वो कैथोड एनोड पे, एनोड कैथोड के डिस्टिंग्विश में, हाँ वहां पे एनाइंस कैटाइंस में भी ये वापस लिखना है, डोंट वरी, अगर लिख लिया तो इरेज मत करना। जस्ट नीचे एनोड कैथोड के एक एक पॉइंट अब समझा क्या, वो डायग्राम देख के। अब बेटा आज मैंने जितना भी लिखवाया ना उसका मैं पीडीएफ बना के आपको सेंड करूंगा, वो कलर वाला पूरा, ठीक है, कलर वाला पूरा करूंगा। बस अभी और 1 मिनट में खाली एनाइंस कैटाइन का डिस्टिंग्विश देखते हैं, फिर ब्रेक देता हूं, ठीक है। हाँ ब्रेक दे रहा हूं ना, तो इधर आ जा। ये यहां पर ही है, इधर देख। ये अनायंस कैटाइन का भी डिस्टिंग्विश देख लो, अनायंस क्या था, ओ माय गॉड व्हाट, मिर्गी आ रहा है बेटा सब। anions are negatively charged, cations are positively charged, बरोबर है। ये कहां पे माइग्रेट हो रहा था, एनोड पे, एंड इट ये वर्ड समझा क्या, डिस्चार्ज, उनका चार्ज गायब हो जाता है कि नहीं, माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड एंड गेट डिस्चार्ज, चार्ज गायब हो गया था कि नहीं बोलो। हाँ हाँ वो तो लिखा ही नहीं है, विलेन है। दे अंडरगो विच प्रोसेस, ऑक्सीडेशन न्यूट्रल। ये ले भाई, यहाँ पे भी लिख ले वो वापस रिएक्शन। तो देख ये इसका भी चार्ज था, ये जाके न्यूट्रल एटम बना के नहीं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाता, न्यूट्रल बन जाता था कि नहीं। इसके ये क्या होता था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होता था कि नहीं, ये देखिए ऑक्सीडेशन। यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था तो रिडक्शन होता था कि नहीं। हाँ बस ये पॉइंट मैंने करवा दिया है। अभी वो एक्वेस की कहानी ब्रेक के बाद में करता, 5 मिनट्स ब्रेक बस। अब बेटा अभी आप प्लीज प्लीज, अरे अरे मैंने ऑन नहीं किया, सॉरी सॉरी। अच्छा ये हम लोग ने अभी क्या पढ़ा बोलो बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस किसका किया था बोलो बेटा, ये क्या हो गया, हाँ फ्यूज्ड का किया था। अभी आप लोग के दिमाग में क्या आ रहा था, ए भुट्टा तू रख क्या, यहाँ पे देखो ना प्लीज प्लीज, ए भाई आ जा। अभी नाउ वी आर गोइंग टू डू व्हाट, ये एक्वेस, ए जगमोहन दालमिया को उठा रहे, लात मार उसको एक, उठ जा, उठ 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 का नहीं, हाँ ये का ओके। ये एक्वेस क्या करने वाले हैं, एक्वेस, ए फोन अंदर रख बस। Sir, what time is the बेटा class बोलो, gonna get over? हाँ क्लास कितने बजे खत्म होगा? मैं तू ना 10:50 को तू खाली जा सकती है, ठीक है ना, चल Okay, बाय, thank you. ओके।
अब इधर पे आ जाओ, ए आर्यन देख अभी। एक्वेस में प्रॉब्लम क्या होता था अभी बताओ। यहाँ पे इन NaCl देयर वाज ओनली Na प्लस NCl माइनस, बट यहाँ पे कौन कौन है देखो, Na प्लस भी है, Cl माइनस भी है, H प्लस भी है और Sir, OH भी है। बोलो। in the molten state, can we also write for the difference that it gets released as a gas form and अब वो ठीक है, वो चलेगा, वो कुछ नहीं, वो तो हम लोग ने कर दिया। इधर पे आ जाओ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, प्लीज। ए भाई, ए राम कुमार देखना बेटा प्लीज। एक्वेस में भी कितने आयंस है अंदर, Na प्लस भी है और H प्लस भी है। ओ माय गॉड, ठीक है। अभी Cl माइनस भी है और OH माइनस भी है, तो रेस कौन जीतेगा? ओ माय गॉड, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव भागने की कोशिश करेंगे कि नहीं? हाँ नहीं, पहले Na प्लस और H प्लस में दो बोथ ऑफ देम विल रन ना, तो नहीं, उसके लिए हम लोग को क्या फॉर्मूला, रिएक्टिविटी सीरीज। लेकिन उसमें भी when there are more ions we have to follow order of discharge। अब बोर्ड में भर भर के इस पे क्वेश्चन आते हैं। What is the order of discharge? Factor affecting the discharge of ions। मेरे नोट्स में देखो फर्स्ट पेज पे क्या दिया है, बोलो। डिस्चार्ज ऑफ आयंस। तो कटायंस के लिए क्या ट्रिक है, हम लोग ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था कि नहीं? करीना ने कार मांगी, अल्टोजेन फरारी, फिर भी है क्यूट, मर्क्यूरी सिल्वर प्लेटेड ऑडी। तो इसमें रूल क्या है? तेरा फोन फेंक देगा मैं तेरा, हाथ ऊपर करके आए, ये थे इसका। हाँ इधर पे ध्यान दे। लोअर द पोजीशन ऑफ आयन ग्रेटर इज द टेंडेंसी टू डिस्चार्ज। समझ में आ गया? ओके। करीना ने कहा, अच्छा एग्जाम में मैंने क्वेश्चन दिया आपको बेटा, मैंने आपको ऐसा है, ये बहुत बार आता है बेटा, 4 आयंस दे दिया इसे बेटा, 4 आयंस दिए, 4 आयंस दिए, बोला हु विल, श्रुति बेटा, हु विल डिस्चार्ज फर्स्ट? द वन विच इज लोअर। अगर मैंने एग्जाम में पूछा इसमें अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज, तो आप क्या क्या लिखोगे? K प्लस, आप समझ में, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो लोअर वन विल डिस्चार्ज फर्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो ऐसा कर। समझ में आ गया? या तो मैं आपको ऐसे 4 आयन दूंगा, बोलूंगा हु विल डिस्चार्ज फर्स्ट अमंग ऑल दिस। समझ में आ रहा है? अच्छा इसमें क्या याद रखोगे, रिएक्ट, इसमें करीना ने कार मांगी तो कार पहले आ गया, फिर ना बाद में आया है, ठीक है ना बेटा? इतना याद रखना बस। क्लियर है? नहीं वो सब जानते, करीना, तू इतना ही याद रख, करीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, बस। करीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, फिर भी है क्यूट, मर्क्यूरी सिल्वर प्लेटेड ऑडी। अच्छा तो अभी आप मेरे को बताओ, यहां पर अभी अभी हम लोग ने जो केस लिया, अभी हम लोग ने जो केस लिया था, उसमें कौन है पहले? Na प्लस था और कौन था बोलो? What we are doing currently, Trisha, electrolysis of NaCl, na? Aqueous. So now, who all were there here? Tell me. The lower one will discharge, ऊपर वाला नहीं। अभी Na प्लस और H प्लस है, तो कौन जीतेगा? कौन था नीचे? क्या ध्यान देना, इसलिए तो बोला और क्यों? What? The H प्लस will win the race, तो H प्लस यहाँ पे जाएगा। हाँ, या पहले H प्लस का तो लिखने दे। H प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनता है? H। बरोबर है कि नहीं? ये कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। लेकिन बेटा सोल्यूशन में एक ही H है क्या? बहुत सारे H हो गए कि नहीं? अरे बोलो ना। तो अगर मैंने यहाँ पे अगर 2H प्लस ले रहता तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता और कौन सा गैस बन जाता? H2 गैस। सो विच गैस इज रिलीज्ड हियर? हाइड्रोजन। समझा क्या? विच गैस इज रिलीज्ड? हाइड्रोजन। ए हीरो क्या कर रहा है अद्वैत? हाँ हाइड्रोजन। अभी Cl माइनस और OH माइनस है, कौन है? Cl माइनस और, तो कौन रेस जीतेगा? हाँ तो उसका भी मैं तुमको ना ट्रिक दे देता हूं बेटा, ट्रिक। ट्रिक, अरे वो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज है बेटा। अच्छा ऐसा क्यों हो ना बेटा, मैं तुम लोगों ने 12th में पढ़ोगे, दैट इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल, EMF सीरीज। वो साइंटिस्ट लोग ने हर एक का एक्सपेरिमेंट ढूंढ के वैल्यू ढूंढा, कौन आसानी से रिडक्शन में जा सकता है। तो ये लोग का रिडक्शन का वैल्यू सबसे हाई था। वो अभी नहीं समझेगा, लेकिन तो अगर साइंस लेगा ना तो हम लोग पढ़ाते हैं 12th में, मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। एनीवेज अभी इसमें क्या ट्रिक है बोलो बेटा? अनाइंस के लिए मैं ट्रिक दे देता हूं तुम लोग को, लिख लो चाहिए तो। ए सोनू फर्स्ट क्लास बिरयानी, सोनू फर्स्ट क्लास बिरयानी, आई ऑर्डर, ऑर्डर का स्पेलिंग मैंने चेंज कर दिया, आई
ऑर्डर लिख लो वहां पर, याद रहेगा नहीं वरना। सोनू फर्स्ट क्लास बिरयानी आई ऑर्डर, लिख ले वहां पर। सोनू फर्स्ट क्लास बिरयानी आए, इसका मतलब क्या, सो से कौन आता था सल्फेट, नो से नाइट्रेट, फर्स्ट फ्लोरीन, क्लास क्लोरीन, बिरयानी ब्रोमीन, आई आयोडीन एंड ऑर्डर्ड इज ओएच। तो अगर इतने सारे आयंस रहेंगे सोल्यूशन में तो हु विल विन द रेस, द वन विच इज लोअर, अदिति बेटा द वन विच इज, तो हु विल विन द रेस, ओएच। अच्छा अगर मैंने एग्जाम में तेरे को ऐसा क्वेश्चन दिया बेटा, लिसन, मैंने ऐसा 4 आयंस दे दिए तेरे को, ले, हु अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज, तो आप ऐसा, हु विल डिस्चार्ज फर्स्ट, हाँ फॉर हाइड्रो एनायंस, ओके, OH fans, राइट बेटा, वो जाने दे, तेरे को जितना मैंने बोला उतना ये देख, ठीक है ना, वही है। सोनू फर्स्ट क्लास बिरयानी आए ऑर्डर, याद रहेगा, ओके, हु विल डिस्चार्ज द एट द एंड, तो सल्फेट, क्लियर है। लेकिन अभी है ना श्रिया बेटा, अभी हम लोग फंस गए बेटा, क्या, अच्छा ये आपने कॉपी किया क्या, अभी OH कभी भी रेस जीतेगा तो कैसे जीतेगा वो भी आपको जानना पड़ेगा, क्या नहीं बोलो, हाउ OH विल विन ऑलवेज, मतलब कैसे, हाउ इट विल गेट डिस्चार्ज, हाउ इट विल गेट, अच्छा तो अभी देखो, अभी अपने से रेस कौन जीता वो हम लोग ने ढूंढ लिया कि नहीं, कौन जीत रहा है इसमें से बताओ, हु इज विनिंग इट, कम ऑन ब्रोस, ये ले, OH विल विन, यहाँ पे कौन विन हुआ था, H प्लस, यहाँ पे से OH जा रहा है, ओ माय गॉड, अभी OH कैसे रेस जीतता है, लिसन केयरफुल, whenever discharge of OH we are going to study, I am writing here बेटा, देखो OH माइनस, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या बनेगा, तो सपोज बेटा अगर मैंने 4 OH माइनस लिया रहता तो कितना होता, अच्छा एक OH कितनी बार है, 1 2 3 4, अब बेटा अभी एक काम करो, इसमें OH और OH इसमें से ये क्या बन जाएगा बोलो बेटा, मैंने कितना OH लिया टोटल, 4 OH बना, ये देखना 4 OH आया कि नहीं। अभी एक काम करो बेटा, यहां पर देखो, ये क्या बन जाएगा, H2O, ये भी क्या बन जाएगा, तो कितना H2O देगा, और बचा कौन, ये O और ये O मिलके क्या बन जाएगा, तो whenever OH will win the race, which gas is released, whenever, तो यहां पर क्या होगा बोलो, ये ऑक्सीजन, OH माइनस इलेक्ट्रॉन, ऐसे में लिखता था कि नहीं, तो OH लिखा, यहाँ पे मैंने 4 बार लिखा, तो फिर अब ये 4 OH आपको क्या देता था, अभी बताया ना डिटेल में, वो ऑक्सीजन एंड वाटर, तो विच गैस इज रिलीज्ड हियर बोलो, क्लियर, तो मैं बताते हैं ना, वो पानी पानी अंदर ही पड़ा रहेगा ऐसा कुत्ते की तरह अंदर। अच्छा अच्छा, आपको एग्जाम में ये भी पूछेगा कौन कौन रेस हार गया, तो हाँ तो NaCl, तो व्हाट रिमेन्स इन सोल्यूशन, NaCl रिमेन्स इन सोल्यूशन, जो रेस हार जाएगा वो अंदर ही पड़ा रहेगा कि नहीं बोलो बेटा, बोलो, अब ये समझा अच्छे से, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कौन सा, एक्वस NaCl। अब बेटा है ना और एक चीज है, सपोज बेटा अगर मैंने एग्जाम में आपको दे दिया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ विच वन बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉन्संट्रेटेड और सैचुरेटेड NaCl, कॉन्संट्रेटेड और सैचुरेटेड, तो उसके लिए भी एक रूल है। अच्छा कॉन्संट्रेटेड और सैचुरेटेड होगा तो वी हैव टू अप्लाई रूल, वी हैव टू अप्लाई रूल ओनली फॉर, हाँ सर क्लास में अर्जेंट कोई काम, नहीं नहीं नहीं, मैं सायन में हूँ सर, ठीक है, ओनली फॉर आयन, अनायन फॉलो करेगा, और क्या लिखेंगे, ओनली फॉर अनायन। तो अगर मैंने ये, अच्छा तो इसमें बेटा कौन कौन था बोल बेटा, Na प्लस था और Cl माइनस, तो Na प्लस के लिए तो अपना नॉर्मल वाला रूल ही फॉलो करेंगे, रिएक्टिविटी वाला। अब बचा कौन, Cl, तो इसमें जो कॉन्सेंट्रेटेड आयंस होगा ना,
that will be high so only for anion high concentrated will discharge. High concentrated will discharge. हाई कॉन्सेंट्रेटेड, तो अभी इसमें हाई कॉन्सेंट्रेटेड कौन है बोलो बेटा? सपोज अगर मैंने ये कॉन्सेंट्रेटेड लिया रहता तो Cl और OH में, तो अभी मैं वो वाला रूल नहीं फॉलो करूंगा. विच वन आई वोंट फॉलो? फर्स्ट क्लास बिरयानी आई ऑर्डर्ड वाला नहीं करूंगा. तो आप CLS आ गए। हाँ, तो इसमें Cl रेस जाए जीतेगा. हाँ, Na+ और H+ में कौन जीतेगा? NM। H+ ही जीतेगा. But sir, तो रूल्स ओनली फॉर अनायन ना, रूल ओनली फॉर अनायन. Don't follow rule for cation. For cation, you follow reactivity series. And for cations, reactivity order only. क्लियर है? अब आपको एग्जाम में कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे बताओ मुझे. आप बोलोगे सर ये आपने बताया वो कहाँ है? ए रुक जा, तो मैं बता रहा हूँ, रुक जा बेटा. यहाँ पे आ जाओ. लुक, क्या लिखा था बोलो? ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, ग्रेटर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट आयन बीइंग डिस्चार्ज. ओके, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? लिख दो वहां पे ओनली फॉर अनायंस. ओनली फॉर नेगेटिव के लिए ही वो रूल फॉलो होता है, पॉजिटिव के लिए नहीं होता है. तो बेटा अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड, यहाँ पे लिखा है ना बेटा, सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड या कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड लूंगा तो हु विल डिस्चार्ज फर्स्ट? क्लोराइड आयंस. तो क्लोराइड आयंस विल गेट डिस्चार्ज्ड. ये पॉजिटिव के लिए कुछ नहीं. कौन होगा बेटा? हाइड्रोजनियम का. क्लियर है? तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का, एग्जाम में आता है ये ऐसा. अभी एग्जाम में इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन आएंगे? 3. हाँ बोल. अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो फिर उसमें वाटर। क्यों कौन बोला पानी नहीं होना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड? तो सोल्यूशन किसमें बनाता है? किसमें बनाएगा सोल्यूशन? अबे मेरे को अगर चलो मेरे को पानी लिया, मैंने इसमें 1 चम्मच शक्कर डाला और दूसरा पानी लिया, उसमें 10 चम्मच डाला, तो 10 चम्मच वाला कॉन्सेंट्रेटेड हुआ कि नहीं? तो अंदर पानी होना चाहिए कि नहीं? ऐसा बात करता है राजा. ओके, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी होता है तो उसमें बेटा पानी तो दोनों में होता है. ठीक है? एनी डिफिकल्टी क्लियर? अभी बेटा इलेक्ट्रोड कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है. कौन से टाइप का होता है इलेक्ट्रोड बोलो? हाँ, एक तो होता है इनर्ट. इनर्ट क्या करेगा? डू नॉट टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोलाइसिस. मतलब वो खाली क्या करेगा? मैं प्लेटिनम हूं तो बस मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन जाएगा या आएगा, बस. बाकी मेरे आयंस नहीं बनेंगे, मेरे आयंस नहीं बने. खाली मेरे अंदर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा. और क्योंकि वो उसका वो इनर्ट है. है। इनर्ट है, उसका बेसिक प्रॉपर्टी है इनर्ट, रिएक्टिविटी नहीं. क्योंकि वो इट इज हाईली दिस थिंग ना बेटा, नॉन रिएक्टिव. दैट इज दैट. अच्छा, दूसरा क्या है बोलो बेटा? एक्टिव. एक्टिव में यहाँ से यहाँ पे मार्क करो, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए. एक्टिव में कौन कौन है तुम्हारा? मैं बताओ. प्लेटिनम और कार्बन को, ग्रेफाइट को छोड़ के कोई भी होगा तो क्या होगा? एक्टिव. तो अगर बेटा मैं सिल्वर, आपने मुझे सिल्वर मेटल बनाया और इलेक्ट्रोड रखा है तो मैं सिल्वर आयन बना, क्या बना दूंगा? अगर आपने मुझे कॉपर का बनाया इलेक्ट्रोड तो मैं आई विल फॉर्म कॉपर आयन. फिर आपने मुझे गोल्ड का बनाया तो आई विल फॉर्म गोल्ड आयन. अगर आपने मेरे को प्लेट ये बनाया है क्या, निकल बनाया, तो आई विल फॉर्म निकल आयन. क्लियर है? तो एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या करेगा? हाँ, डिंग डिंग बोलो बेटा. Sir, so does this mean that it only passes the electricity? या हाँ, हम but passes electricity is only platinum and graphite. But when you take हाँ वही. any other metal other than these two, then it will form ions. हाँ We तो are मतलब it going will to react with बाकी yeah, one. it will then react. It will react in the solution. That will study not today. Next class, maybe we are going to study that. Okay. Thank you. But today, what we studied, this very important thing we studied. What we studied? Tell me. 3 things we did very important. चलो बताओ. अरे इलेक्ट्रोलाइट्स. हाँ नहीं, इलेक्ट्रोलाइट वो सब जान दो, वो नहीं. मेन अभी मैं बताता हूँ. अभी हम लोग ने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैथोड और एनोड. अभी मैंने 3 इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, उसके बारे में बताओ. कार्टून और ये पॉजिटिव. ठीक है? इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग ने पहला किसका किया? एग्जाम में पूछेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस. हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फर्स्ट क्या किया आज हम लोग ने? मोल्टन या फ्यूज्ड NaCl. मोल्टन और फ्यूज्ड NaCl बोला.
फिर दूसरा हम लोग ने क्या किया था, बोलो बेटा? यस, थर्ड हम लोग ने क्या किया था, बोल बेटा? कॉन्सनट्रेटेड या तो और सैचुरेटेड। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का। चलो पहले फ्यूज में था तो कैथोड पे कौन आता था, बोलो बेटा? व्हाट यूज्ड टू गेट में डिपॉजिट, बोलो? Na। यहाँ पे क्या होता था, बोलो बेटा? क्लोरीन गैस। बट इसमें क्या होता था, एनोड पे कौन आता था, बोलो? हाँ, ये एक्वस में हाइड्रोजन गैस। ओके, यहाँ पे क्या होता था, ऑक्सीजन। इसमें भी क्या होता था, हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर क्या आता था, बोलो? समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था बेटा। क्लियर? अब बोल बे। O2 and H2O ना, नहीं, H2 will remain in the solution। समझा क्या? O2, अबे येड़े, ये क्या था यहाँ पर? O2 आया कि नहीं? O2 गैस है क्या? ये गैस है क्या? हाँ। OH का क्या हुआ? OH ने पानी बना दिया। ये देख, इतना बता रहा तो सो रही थी क्या तभी? नहीं, ये अभी हाँ, ये 3 पॉइंट आपको समझा क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर है कि नहीं, बोलो? टन 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 टन। समझा क्या? हाँ सर। हाँ, ये 3 पॉइंट अगर आप ये लिख लो, आएगा एग्जाम में। इसको मैं सेव कर लेता, वरना मैं भूल जाऊंगा। जहां लिखना है लिखो, आपका मर्जी। हाँ, ये मैं भेज रहा हूं पूरा, तुम लोग को आज ही भेज दूंगा मैं। पूरा डिटेल में मैंने बता थी तुमको, समझी ना? सैचुरेटेड का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? साचू। है? कौन कह रहे? लेट मी इन द मीटिंग कौन है? बिहानी, अनन्या बिहानी आई है? सर अनन्या दूसरे बैच में है। तो आई नहीं मीटिंग में। बीमारी रहती है अनन्या बिहानी, क्या रे? शे यार, ये लोग सब बच्चे ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, क्या रे? इंग्यूली भी ऑनलाइन कर रही है। चलो बेटा, अभी आ जाते हैं। क्या हुआ? वो है क्या? हो। बाकी अभी चल, चुपचाप बैठो। तो कैन आई लीव? यस यस बेटा, यू कैन। बिनी एंड क्या है ये? माता? नहीं, क्या है? अनिया। हाँ, यू कैन लीव। बाय सर, थैंक यू। यहां तक समझ में आया कि नहीं? पूरा अच्छे से बताओ, एकदम दिमाग में फिट हो गया? कैन बी आल्सो। हाँ, बोलो क्या है? क्यों रे? अरे बेटा, ऐसा करोगे क्या? अच्छा रुक जा, एक दो पॉइंट, 5 मिनट बाकी है तेरा, 4 मिनट बाकी है, रुक जा। मेरा भी कल एग्जाम है। अच्छा बस एक चीज मेरे को खाली बताने दो, प्लीज। बस ये, अरे ये बस सबको छोड़ रहा हूँ, रुक जा। ये कर लेना बेटा। मेटल और इलेक्ट्रोलाइट में, अच्छा बेटा, अगर मैंने वायर लिया रहता, सुनो ना, वायर में करंट कैसे फ्लो होता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम लोग ने ये सोल्यूशन पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइट में कैसे फ्लो होता है? इन द फॉर्म ऑफ आयन, इन द फॉर्म ऑफ
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होता था, फ्लो ऑफ आयंस। ये वायर के अंदर करंट फ्लो का तो वायर को कुछ होगा क्या, नो, तो नो डिकम्पोजिशन, नो नथिंग, नो डिकम्पोजिशन। ये अभी हम लोग ने पानी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया था, NaCl के अंदर किया था, राइट है ना, तो एक जगह पे Na जाता था, एक क्लोरीन, तो डिकम्पोजिशन होता है कि नहीं बोलो, तो देयर इज अ डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ओके, मेटल्स आर, अच्छा मेटल खाली गुड कंडक्टर किस में होगा बोलो बेटा, सॉलिड में भी हो सकता है और मोल्टन में भी हो सकता है, सॉलिड है, लेकिन हाँ That have to be the combined state. हाँ, बट इलेक्ट्रोलाइट होगा तो Combined. now electrolyte will be always in fused or molten or aqueous Combined one has to be in the fused form. and not in solid. If I say NaCl solid, if I say NaCl solid, is it a good conductor? Oh. No, it is not at all. समझा क्या? It is not at all. Sir, higher the voltage, before the electron. क्या क्या? Sir, higher voltage, हरियाणा. मैं हायर वोल्टेज वो सब बाद में मैं बताऊंगा तेरे को, रुक जा, अभी MCQ में एक क्वेश्चन तो बेटा खाली कर लो ना, ये पढ़ाया वही है। ए कॉपर इज दो अ गुड कंडक्टर, बट वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकता, क्योंकि कॉपर कौन है, मेटल है, और वो फ्री आयंस नहीं बना सकता है। So how is it a good conductor? It allows the passage of electricity through electron and I solution में कैसा होता है, इन द Copper में दो इलेक्ट्रॉन से आयन में वो नहीं होता है, उसके सोल्यूशन का इलेक्ट्रॉन उसमें से पास होता है। दो अ गुड कंडक्टर, इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट because at it conduct electricity only in which state, solid state by electrons। वायर, अच्छा ये वायर में करंट फ्लो रहा है, कैसे फ्लो रहा है, कैसे फ्लो रहा है, और कौन है अंदर, कॉपर वायर है ना। इलेक्ट्रोलाइट होने के लिए क्या होना चाहिए, आयंस। Solid NaCl does not allow electricity to pass through. Why? No free ions. No. सॉलिड NaCl में कहां पे इलेक्ट्रॉन आया तेरे को, ठीक है, रैप्ट है। कंपाउंड फॉर्म में कहा होता है, अबे बेटा मेटल का होता था ना, मेटल है लो आयनाइजेशन, खाली मेटल होता है तो लो, तो जब हम लोग करंट पास करते हैं तो इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन, अलाउज द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट NaCl तो इज अ कंपाउंड ना, कंपाउंड में कहां आयनाइजेशन आता है, ठीक है। तो बेटा यहां तक हमने कर दिया है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एवरीबॉडी। बाय सर। अच्छा मैंने वो, हाँ लेके जाना है, सर आप वो नोट्स आपके वो बॉक्स में ही रखने वाले हो हाँ ना? हाँ 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 ठीक है, मैं ले लूँ। तो मेरे भी रख देना। हाँ 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 हाँ।